Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9 student, in this video we understand question number 6, exercise 5.2. Find minimum and maximum values of this function by using these two inequalities. First step, we change these inequality into the associated equation. Change the first inequality into associated equation 3x plus 5y greater than equal to, change into equation sign equal to 15. This is first associated equation. Second inequality, x plus 3y less than equal to 9. Change that inequality into associated equation x plus 3y equal to 9. Second associated equation. Now we use the equation 1 and by using equation 1 we are going to calculate the boundary lines. हम equation 1 को use करेंगे, इसकी बाउंड्री लाइन को कैलकुलेट करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1. फॉर कैलकुलेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट वी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0 इन दिस एसोसिएटेड इक्वेशन 3x प्लस 5 ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 15. y की जगह ब्रैकेट में 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 3x प्लस 5 मल्टीप्लस 0 वी गेट 0 इज इक्वल टू 15. वी गेट 3x इज इक्वल टू 15. 3 इज कोफिशिएंट. Multiply with the x variable, change the side, goes on the other side, become x is equal to 15 divided by 3. 3 5s are 15, we cut. X is equal to 5 we get. When we substitute y is equal to 0, we get the value of x is equal to 5. Now for point 2, we substitute x is equal to 0 into first associated equation 3x plus 5y is equal to 15. इस फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन में x की 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 3 रेदर देन x सब्स्टिट्यूट 0 इनसाइड द ब्रैकेट प्लस 5y इज इक्वल टू 15. 3 मल्टीप्लस 0 वी गेट 0 प्लस 5y equal to 15. We get 5y is equal to 15. 5 is a coefficient, multiply with the y variable, y is equal to 15 divided by 5. 5 3 is the 15, we get y is equal to 3. When we substitute x is equal to 0 into first associated equation, we get the second point 0 and 3. Now we test that inequality. Test the first inequality. First inequality is 3x plus 5y greater than equal to 15. Students, for the testing the inequality, we always substitute x and y both 0. x और y को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इनक्वालिटी को टेस्ट करने के लिए. दोनों को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ब्रैकेट में x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट. 5 रेदर देन y 0 सब्स्टिट्यूट इनसाइड द ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू 15. Now 3 multiply 0 we get 0. 5 multiply 0 we get 0 greater than equal to 15. 0 plus 0 we get 0 greater than equal to 15. As we know that 0 can't be greater than 15, means that this test is false for x and y both 0. Mention false. Now students, we take the second associated equation and we do the same procedure. अब इसकी भी बाउंड्री लाइंस के पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे. पहले y को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा. देन वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, वी गेट द सेकेंड पॉइंट. लेट्स सब्स्टिट्यूट द y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट into this associated equation. x plus 3 y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वल टू 9. x plus 3 multiply 0 we get 0 is equal to 9. We get x is equal to 9. When we substitute y is equal to 0 into this associated equation, we get the first point 9 and 0. Now we substitute x is equal to 0 into this associated equation. x plus 3y is equal to 9. x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 0 plus 3y is equal to 9. 3 is a coefficient. 3y is equal to 9. Change side, goes on the other side, become division y is equal to 9 divided by 3. 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब अपनी साइड करके चेंज करके इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा, इट बिकम डिवीजन. 3 3s are 9. We get y is equal to 3.
When we substitute x is equal to 0 into this associated equation, we get the next point 0 and 3. Now student would test this inequality. Test the second inequality. Second inequality is x plus 3y less than equal to 9. For always testing the inequality, we substitute x and y both 0. x is equal to 0 and y is equal to 0. x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3, y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेस देन इक्वल टू 9. 0 plus 3 multiplies 0 we get 0 less than equal to 9. 0 plus 0 we get 0 less than equal to 9. When we substitute x and y both 0 we get 0. 0 is less than 9. We know that 0 is less than 9 means that this inequality is true for x and y both 0. Student, by the solution of these two associated equations we get this information. Now we use this information to construct the xy plane and construct the feasible region area. स्टूडेंट एक्स वाई प्लेन की कंस्ट्रक्शन के लिए हम अपनी एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम पहले मिडल में ड्रॉ करते थे, बट एज यू सी दैट पॉइंट्स में हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, हमें पॉजिटिव एरिया ज़्यादा चाहिए और हमारे पास फिजिबल रीजन भी हमने पॉजिटिव एरिया मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है. तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट थोड़ा सा बड़ी स्पेस में बना देंगे क्योंकि उसमें फिजिबल रीजन के शेड करना और उसको समझना आसान होगा. मिडिल पे बजाने के बजाय हम इसको थोड़ा साइड पे अपना स्केल रख के एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रॉम 0 to 10. पॉइंट प्लॉट कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now construct the arrow on the both side of this vertical line. This vertical line is known as y-axis. तो y मेंशन कर देंगे इसके अपर एरो पे और डाउनवर्ड एरो पे. सिमिलरली मिडल पे हम इसके यहाँ पे अपना स्केल रखेंगे एंड कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 13. पॉइंट प्लॉट करेंगे 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. This line known as horizontal line. horizontal line को x axis से डिनोट करते हैं. horizontal line known as x axis. तो इसके दोनों एरोस की तरफ x को मेंशन कर देंगे. Where x and y both cut each other is known as origin. इस पॉइंट को origin कहते हैं. यहाँ पे x और y दोनों वैल्यू 0 होती हैं. अब वैल्यूज़ मेंशन करते हैं. पहले वर्टिकल लाइन की मेंशन करते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव y की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और बिलो नेगेटिव होती हैं. y की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? सेकेंड वैल्यूज़ ऑलवेज पॉइंट प्लॉट करने की सेकेंड होती है. y की वैल्यू 0, 3, 0, 3 मीन्स 3 तक हमारी रेंज काफ़ी होगी तो हम इसको प्लॉट कर देते हैं 1, 2, 3. डाउनवर्ड की तरफ नेगेटिव होती हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे -1, -2 एंड -3. x की वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं. x की वैल्यू हम देखते हैं. x की वैल्यू हमारे पास क्या है पॉइंट्स में? पहली वैल्यू x की होती है x 0, 9, 0. 5, 0, 9, 0 मीन्स हमें 9 तक रेंज चाहिए तो हम 2 यूनिट्स का डिफरेंट ले लेते हैं. y एक्सिस पे हमने 1 यूनिट का लिया क्योंकि हमारे पास 3 तक वैल्यूज़ प्लॉट करनी थी, ईजी टू प्लॉट. 9 तक हमारी रेंज यहाँ पे पेज पे डिफ़िकल्ट होगी तो हम 2 यूनिट्स का डिफरेंट ले लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं. -2, -4 एंड -6 काफ़ी हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमने कोई भी प्लॉट नहीं करनी. पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ 5, 0. पहला पॉइंट क्या है? 5, 0. x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है. पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है. एट x 5 कहाँ पे? 4 और 6 के दरमियान है. यहाँ पे अपना पॉइंट प्लॉट करेंगे, मेंशन कर देंगे 5 एंड 0. वी प्लॉट द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट प्लॉट करने के लिए हमारे पास पॉइंट 2 है 0 एंड 3. द सेकेंड पॉइंट x वैल्यू 0 एंड y वैल्यू 3. x की वैल्यू 0 वर्टिकल लाइन पे होती है और y वैल्यू 3 पॉइंट पे अपना पॉइंट प्लॉट कर देंगे. वी गेट 0 एंड 3 सेकेंड पॉइंट.
Now by using your scale, join with these 2 points with a straight line. एक straight line के थ्रू इन दोनों points को join कर दें. Mention the equation of this line. Equation of this line is 3x plus 5y is equal to 15. Now we plot the third point. Third point, x is 9 and y value is 0. x is 9, y value is 0. पूरे x axis पे y की वैल्यू 0 होती है. 8 और 10 के दरमियान देर इज़ 9. यहाँ हम ना पॉइंट प्लॉट कर देंगे 0, 9 एंड 0. सेकेंड पॉइंट मिल गया हमारे पास यहाँ पे थर्ड 9 एंड 0. 9 एंड 0 y वैल्यू 0 है. पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है. एट 9x पे अपना पॉइंट प्लॉट कर देंगे. वी गेट द थर्ड पॉइंट 9 एंड 0. फोर्थ पॉइंट के लिए हमारे पास है 0 एंड 3. x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3. x पूरा y एक्सिस पे 0 होता है. एट 3 पॉइंट सेम वही पॉइंट है. दोनों पॉइंट सेम है 0 एंड 3, 0 एंड 3. तो इसी पॉइंट पे अपना पॉइंट प्लॉट कर देंगे. दोबारा प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है. दोबारा यही पॉइंट है. इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे. दोनों पॉइंट सेम है तो हमें दोबारा पॉइंट प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है. इस पॉइंट को और थर्ड पॉइंट को आपस में मिला देंगे. बाय यूजिंग योर स्केल, ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स विद अ स्ट्रेट लाइन. वी गेट द सेकेंड बाउंड्री लाइन. इसकी इक्वेशन मेंशन कर देंगे x प्लस 3y. x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. नाउ अब हमने अपना फिजिबल रीजन कैलकुलेट करना है. फिजिबल रीजन कैलकुलेट करने के लिए हम इन स्टेटमेंट्स के ट्रू को देखते हैं. जो हमने टेस्ट किए थे वो हमें बताते हैं कि हमारा शेडिड एरिया कहाँ होगा और इसके अलावा वो कौन से रीजन में होगा. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें गिवन है x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू 0. मीन्स एंड x की वैल्यू भी उस रीजन की पॉजिटिव होगी, y भी वैल्यू उस रीजन की पॉजिटिव होगी. x और y दोनों पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं. फर्स्ट मीन्स हमारा जो शेडिड एरिया होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन. पहले हमने इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का डिसाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. देन जो हमने टेस्ट किए थे उसके मुताबिक हम इसको शेड कर लेते हैं. 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 का टेस्ट फॉल्स था. मीन्स दैट ये हमारी 3x प्लस 5y की लाइन है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये इस यहाँ से लेके ये 3x प्लस 5 की लाइन है. इस एसोसिएटेड लाइन का हमारे पास रिजल्ट फॉल्स था. मीन्स दैट इसका शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन की दूसरी साइड पे होगा, इस तरफ, एट दिस साइड. ये हमारा इस साइड का शेडेड एरिया इस तरफ होगा. नाउ सेकेंड लाइन क्या थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 की ये लाइन है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इसका शेडेड एरिया डिसाइड करेगा इसकी ट्रू स्टेटमेंट. इसकी ट्रू स्टेटमेंट है मीन्स इस लाइन का शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ होगा एट दिस साइड. इस तरह ही हमारे पास एक ट्राइंगल शेप फिजिबल रीजन बन जाएगा जिसके 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकंड पॉइंट इज दिस एंड थर्ड पॉइंट इज दिस. जो हमने एरिया शेड किया था इसको फिजिबल रीजन कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी कैलकुलेट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस फिजिबल रीजन. पहला कॉर्नर पॉइंट हमारा ये था, मेंशन कर देते हैं. फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इज़ 5 एंड 0 ऑफ द फिजिबल रीजन. सेकंड कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है इस फिजिबल रीजन का 9 एंड 0. थर्ड कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस फिजिबल रीजन इज 0 एंड 3. 0 and 3. Now we take these 3 corner points. Now students, we take these 3 corner points of the visible region and substitute into the provided function in the question statement. इस फंक्शन को अभी तक हमने यूज़ नहीं किया. इस फंक्शन को यूज़ करते हुए इसमें कॉर्नर पॉइंट्स को सब्सटीट्यूट करेंगे और अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे. कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी फंक्शन में सब्सटीट्यूट करते हैं. z पहले हम सब्सटीट्यूट करते हैं. पहला पॉइंट 5 एंड 0 मीन्स x वैल्यू इज़ 5 एंड y वैल्यू इज़ 0. 3 x की जगह ब्रैकेट में 5 और y की जगह 0. 3 मल्टीप्लाई 5 15. 15 plus 0 we get 15. When we substitute first point into this function we get the result 15. Now we substitute the second point into this function. Z is equal to 3x plus y. First value is 9, x value is 9 and y value is 0. Substitute 3, x की जगह ब्रैकेट में 9
प्लस वाई की जगह 0. 3 multiply 9, 27 plus 0, we get 27. When we substitute the second point into this function, we get the result 27. Now we substitute the third point. Z is equal to 3x plus y. Third point is 0 and 3. Means x value is 0 and y value is 3. x की जगह 0 substitute कर देंगे. 3 x की जगह 0 plus y की जगह 3. 3 multiply 0, 0 plus 3, we get 3. When we substitute the third point 0 and 3 into this function, we get the result 3. Now first function given us point given us 15, second function given us 27 and third 3. Minimum result क्या था? Third point का. Maximum result क्या है? Second point का. Means this function is minimum at point, minimum at corner point, थर्ड पॉइंट पे मिनिमम है. थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? 0 and 3, 0 and 3. मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, मैक्सिमम रिजल्ट किसने दिया? सेकेंड पॉइंट ने 27. मीन्स दैट द मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 9 and 0. This is our required result. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.